Yes, hello again. Welcome to my channel. Now today I am going to start trigonometry, and this trigonometry is the basically for class 9th student and ICSE student especially. And this is the just basic for class 9th student. This is just new, and so that be careful. You will see what will be the use of this topic. So especially trigonometry, the topic at class 9th level, that is we are measuring all the part of a triangle. There we are applying this, and nowadays vital use of this trigonometry in engineering, and just like big dams we are making, there we are using. If you want to find height of that monuments, yeah, Himalaya and whatever which we cannot measure easily, that also we can measure with the help of trigonometry. Just like you have to find height of this Qutub Minar height you want to find, then also it is possible to find with the help of trigonometry. And basically use of this trigonometry, that is we are find all the part of the triangles. So in class 9 that is just basic things are given here. Especially it is based on the relation of the sides of a triangle, and that relations are 6. Just like in numbers we are having numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. The whole math is deal by these digits only. And in trigonometry similarly we are having 6 ratios related with the sides of a right angle triangle, and that we will see in the 9th class syllabus. First of all, that is called ratio of the sides of a triangle. So first of all we are going to discuss, that is what is the trigonometry. In this branch of math, basically study relationship between the sides and the angles of a triangle. This we should know. And trigonometry is made by, especially there are 3 letters, 3 words, Greek words. First tri means hota hai, that is 3. Gon means that is sides, and metron means मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स को मेजर करने की प्रक्रिया को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. एट बेसिक लेवल पे यही बात होगी. बाकी बातें आती हैं लेकिन वो सीनियर सेक्शन में आती हैं. क्लास 9th में इतना ही देखना है. स्पेशली सम क्वेश्चंस विल बी गिवन ऑन द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंड दैट आर द 6 रेशियोज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द 6 रेशियोज. इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, which we have done at class basic level, that is one is Pythagoras theorem. In a right angle triangle, you know that if all 3 sides are given, then we are having a relation with the sides of a right angle triangle, that is called Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होती है, अगर सबसे longest side को लें in a triangle and square of the longest side is equal to the sum of square of other 2 sides, then that triangle will be a right angle triangle. And in a right angle triangle Pythagoras theorem देखेंगे तो always square of the side opposite to the 90 degree is equal to sum of square of other 2 sides होता है. यानी अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड अगर होगी, तो मान लें हम ट्रायंगल ये ले लेते हैं. पहले इसकी भी बात कर लेते हैं बिकॉज इसकी यूज तो होगी. दिस इज सपोज ABC, या इधर से ABC लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दिस अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, आई थिंक नो. दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज विल बी नॉट चेंज. अब ये ट्रायंगल चाहे लेफ्ट जाए, चाहे राइट जाए, अप जाए, डाउन जाए, 90 डिग्री तो एक ही होता किसी ट्रायंगल में. सो हाइपोटेन्यूज बदलने वाला नहीं है. कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, दैट इज द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री. तो इससे हमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन ये साइड्स बदला करती. तो जनरली इस साइड को वैसे तो हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट इसको P से करते हैं एंड इसको बेस कह देते हैं. लेकिन ये एंगल के अकॉर्डिंग बदल भी सकता है. अगर हमने एंगल A लिया है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर एंगल C हो जाएगा तो फिर साइड अपोजिट टू द एंगल जो होती है अदर देन 90 डिग्री, वही परपेंडिकुलर कही जाती है. यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड ये होगी
क्योंकि साइड अपोजिट टू एंगल ए है। एंड अगर एंगल सी ले लेंगे, इफ आई एम टेकिंग एंगल सी, देन अगर हम एंगल सी ले लेंगे, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड इन दिस सिचुएशन इफ आई एम टेकिंग एंगल सी, देन दिस विल बी लाइक अ परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। यानी बेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड्स होगी, ठीक है। एंड दिस इज द अपोजिट साइड, इसको हम लिख सकते हैं अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, एंड इसको एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल लिख सकते हैं। एंगल नोन है, दैट इज जो एंगल हमें दिया होगा, सी दिया यूज कर रहे हैं तो ये एडजेसेंट हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे ये अपोजिट साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए लिख दीजिए, यहाँ पे सही रहेगा, एंगल सी लिख दीजिए यहाँ पे। एंड दिस इज सी, यहाँ पर भी सी लिख दीजिए, है ना, ये सही रहेगा, दिस इज एंगल सी, है ना। तो ये एंगल सी हो जाएगा, ये अपोजिट टू दिस है, और ये हो जाएगा एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, निकट, पास में, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हैं। एंड प्लस इसमें जो हम रिलेशंस बनाएंगे, पी एच, इसका शॉर्ट फॉर्म जो हम लेंगे एच ले लेंगे, बी को बी ले लेंगे, पी का पी ले लेंगे, इसी के फॉर्म में रिलेशंस बना लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो इसमें होती है वो इसमें बनती है कि साइड स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज ए सी, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर का रूल नहीं है, चाहे जो साइड ले, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी कि स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। तो ए सी को हमने एच माना है, तो यू कैन एड दिस आल्सो, एच इक्वल टू ए बी, इसमें आएगी बी स्क्वायर एंड प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से भी हम याद सकते हैं, कई बच्चे यही केवल याद रखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अब उनको पता नहीं रहता कि पी और बी कौन है। तो ये बात भी पता होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज विल बी नॉट चेंज इन अ ट्रायंगल, मे बी यू चेंज द टर्न ऑफ दैट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यू कैन चेंज इन डिफरेंट वेज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी साइड में ले जाइए, बट उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी जिस एंगल को लेंगे उससे जुड़े हुए दोनों साइड को हम परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे, उसका जो अपोजिट साइड होगा जो इस ए के कांटेक्ट में नहीं है वही वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा, और जो साइड इसके कांटेक्ट में है तो एक तो हाइपोटेन्यूज है, उसको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, दूसरी साइड जो बची है वही इसकी एडजेसेंट साइड यानी बेस मानी जाएगी। तो अगर एंगल सी लेंगे तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, अगर एंगल ए लिया तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। इसमें ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, और क्लास 9th में जो क्वेश्चंस फर्स्ट टाइप के दिए हैं वो इसी रेशियो पे ही डिपेंड है, तो इसको मिला करके 6 रेशियोज बनाते हैं। अगर कोई 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड निकालना है तो इसमें हम पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। तो ये इसकी पाइथागोरस थ्योरम है। इसका कन्वर्स भी होता है कि भाई किसी ट्रायंगल में अगर हमें चेक करना हो, साइड्स हमें दी हुई हैं, साइड सपोज दिया है 3, 4, 5, और हमें चेक करना है क्या ये पाइथागोरस, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसके लिए हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगाते हैं। एंड कन्वर्स क्या होता है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर ले लिया जाए तो ये ऑलवेज अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के बराबर अगर होता है तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एंगल ट्रायंगल। यानी अगर ऐसा हो जाता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, देन वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये चीज़ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कही जाती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल के अगर स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, देन वो पाइथागोरस थ्योरम होगी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। अब बात करते हैं इनके रेशियोज की।
आई होप ये बात समझ में आ गई। क्योंकि परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज का ध्यान रखेंगे तो रेशियोज को आराम से याद किया जा सकता है। तो लेट मी सी नाउ सी नेक्स्ट वन, पाइथागोरस थ्योरम का ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल का ध्यान रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का, स्पेशली क्लास 9th में हम 9th की ही बात करेंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये मेरे सिलेबस में है कि नहीं है, तो थोड़ा सा सेपरेट रखना ज़रूरी है। इस बात का भी ध्यान रखें, जितना सिलेबस में है उतना ही करें, क्योंकि बोर्ड तो आपको उतना ही देगा। तो ये स्पेशली 9th के लिए है, इसके बाद फिर 10th वाला होगा एंड देन हम क्लास 11 12 का शुरू करेंगे, जिससे सारी चीज़ें एक साथ में आ जाएंगी। मिक्स कई बार मिक्स हो जाता है, तो मिक्स नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो चीज़ें मिक्सिंग कई बार होती हैं जब तब निकाल सकते हैं जब हमारी सारी जानकारी है, अगर जानकारी नहीं है तो फिर कई बार प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए नाउ रेशियोज़ की बात करेंगे तो रेशियो हमारे पास 6 होते हैं। एक तो साइन थीटा बोलते हैं। अगर हम ट्रायंगल ये ले लें ABC वाला, दिस ट्रायंगल ऑफ आई एम टेकिंग, दिस ट्रायंगल इज A, दिस इज B, दिस इज C, then side opposite to this will be hypotenuse and this is angle, so this will be perpendicular। P से रिप्रेजेंट किया और ये इसकी B हो जाएगी, B for base and this is perpendicular, this is perpendicular and this is hypotenuse। हाइपोटेन्यूज तो एक बात तो क्लियर ही है कि दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो क्लियर ही। यानी कोई भी 2 पॉइंट अगर हमें दिए हैं तो तीसरा पॉइंट हम आराम से निकाल सकते हैं। तीसरी बात, इसकी जो साइड्स होती हैं इनको हम इस टाइप से अगर लिख लें तो रेशियोज हम आराम से याद कर सकते हैं। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, कुछ भी याद सकते हैं, सब कोई ऐसा रूल नहीं है, बट इसकी हेल्प से हम इजीली याद कर सकते हैं। तो इसमें पंडित बद्री प्रसाद पी फॉर पंडित हो जाएगा, पी फॉर ए पंडित हो गया एंड बी फॉर बद्री मान लिया, बद्री एंड पी फॉर प्रसाद हो गया। यहाँ पे पंडित हो गया, यहाँ पे प्रसाद हो गया, जैसी जरूरत पड़ी वैसा करा। एंड हरी हरी बोल, यानी ये एच फॉर हरी हो गया, हरी कई लोग बोलते हैं, कई लोग हरे बोलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल भी लिख सकते हैं, बी फॉर बोले। तो ये कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन कई बार ट्रिग्नोमेट्री में देखिए तो यही समझाते हैं। समझने के लिए कोई अगर दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से फ़ायदा क्या हुआ कि हमें ये वाला जो रिलेशन P/H मिलता वो साइन हो जाता, ये वाला कास हो जाता, ये वाला टैन हो जाता। इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये कोशेक हो जाएगा, ये वाला रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक हो जाएगा, ये वाला रेसिप्रोकल कर देंगे तो काट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हमें 3 पता हों कि एक तो साइन A पता है, कास A एंड टैन ए, ठीक है, 3 पता हो गए मुझे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से। एक तो P/H साइन हो गया, P/H, दिस इज साइन, दिस इज B/H साइन एंड दिस इज P/B, P/B, ठीक है। ये साइन हो गया P/H, दिस इज कास B/H एंड टैन P/B। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म कोसाइन एंड टेंजेंट इस टाइप से होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग साइन कास एंड इस टाइप से बोलते हैं, तो पूरा इसको बोलने की जरूरत नहीं। इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगी, इट्स रेसिप्रोकल बिकम्स इट्स कोशेक, कोशेक ए, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए, सेक ए, एंड दिस इज द कॉट ए, ठीक है। कॉट टेंजेंट होता है, सेक टेंजेंट इस टाइप से बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बोलते हैं। कोशेक हो जाएगा इसका मतलब, अगर इसका रेसिप्रोकल है तो कोशेक क्या बन जाएगा भाई, कोशेक इसका बन जाएगा कि दिस बिकम्स H/P, दिस इज H/B
B for base and this is B upon P. तो ओवरऑल ये 6 रेशियो हैं। एक ये हो गया, दिस इज 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। इस टाइप से याद रखें। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कास का रेसिप्रोकल सेक एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट। These are the 6 ratios. This we have to keep in mind. And in class 9th लेवल पे सब कुछ इसी पे डिपेंड है। क्या क्लास 9th आगे भी चलेंगे, जो भी क्वेश्चंस करेंगे तो बेसिकली तो इसी पे डिपेंड रहेगा। स्टेप्स बदलते जाते हैं बट बेसिकली यही होगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। दिस इफ यू विल कीप इन माइंड, दिस बिकम्स वेरी इजीली यू कैन लर्न। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हरी हरी बोल, देन P upon S becomes sin, this becomes cos, this becomes tan। इसके रेसिप्रोकल्स कर देंगे तो बन जाएंगे कोसेक, सेक एंड कॉट। सेक होता है, दिस इज सेक सी। थोड़ा सा इसके स्लिप कर जाते तो स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे। दिस इज कॉस COS है एंड दिस इज टैन TAN। शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में है और इसमें भी शॉर्ट कर देंगे तो फिर और समझने में दिक्कत हो जाएगी। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, दीज आर द 6 रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस होंगे इस पे बेस होंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेशंस भी कुछ निकाले जा सकते हैं, उनकी भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये पार्ट रब कर देते हैं, हमें लगता है दिस वन मैं रब कर देता हूँ। एंड इसके बाद तो दूसरा कुछ रिलेशंस निकाले जाते हैं। तो हम अगर पहला वाला रिलेशन देखें, फर्स्ट रिलेशन, कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो देखिए एक और रिलेशन आ जाता है तीसरा, 3 4 5 6 था, दिस इज 7th कि दैट इज साइन A इंटू कोसेक A। तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए ये है P अपॉन H और ये है H अपॉन P। तो ये ऑलवेज आ जाएगा 1, PP कैंसिल, HH कैंसिल, 1 आ जाएगा। इसी से 7 एंड 8 नेक्स्ट रिलेशन बन जाएगा, दैट इज cos A into sec A, this becomes B upon H and this is H upon B। देन इसको हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे कि sec इंटू कास जो होता है वो 1 होता है, साइन इंटू कोसेक 1 होता है। इसी टाइप से tan एंड cot, 9th फार्मूला हो जाएगा tan A इंटू cot A, दिस बिकम्स P अपॉन B एंड दिस बिकम्स B अपॉन P। सो B कैंसिल, P कैंसिल, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से एक बात और भी क्लियर हो जाती कि साइन इंटू कोसेक का 1 होता है प्रोडक्ट, कोसेक इंटू कास इंटू सेक आ जाएगा तो वो भी 1 होगा, टैन इंटू काट आ जाएगा तो वो भी 1 होगा। इस रिलेशंस को भी यूज़ करेंगे और कहीं भी अगर साइन की वैल्यू लिखनी होगी तो 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक को साइन लिख सकते हैं। इस टाइप से भी इन रिलेशंस को यूज़ किया जाएगा इसकी हेल्प से। एक रिलेशन और बन जाता है 10th में। देखिए अगर हम साइन और कास को दोनों को डिवाइड कराएं तो हमें टैन मिल जाता है, यानी टैन A इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, दिस बिकम्स P अपॉन H है, P अपॉन B है, तो वी कैन राइट P अपॉन H, दिस इज B अपॉन H एंड P अपॉन H की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज दिस इज साइन A एंड दिस बिकम्स कास A। तो साइन A अपॉन कास A भी टैन A के रिलेशन में आ जाएगा। तो इसको भी हम याद रखेंगे, टैन A बराबर साइन अपॉन कास A। एंड इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉट, सो कॉट A इक्वल टू इसी टाइप से बन जाएगा B अपॉन H और इसका रिलेशन बन जाएगा कास A अपॉन साइन A। तो इस रिलेशन का भी यूज होता है। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज दैट आल्सो मेड बाय दीज 6 रिलेशंस आल्सो ओनली। तो इन रिलेशंस को टोटल 11 रिलेशंस हो गए, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे होंगे एंड इसमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी भी उसी बच्चे की हो पाती है जो थोड़ा सा फार्मूले पे फिट कर लेता। फार्मूले क्लियर है तो हर स्टेप पे फार्मूला यूज़ होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में होता नहीं है। तो 11 रिलेशन बन गए, कुछ और रिलेशंस भी हैं उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद फिर चलेंगे एक्सरसाइज में एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो 11 रिलेशन ये हो गए। इसके बाद फिर एक रिलेशन और भी होता है कि दैट इज अगर इसमें हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए ले लें। अब देखिए साइन हमारा क्या है भाई कि साइन होता है P अपॉन H का स्क्वायर एंड ये होता है B अपॉन H का स्क्वायर।
तो अगर इनको हम स्क्वायरिंग करा देंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, सो यू कैन राइट टुगेदर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, मींस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा अभी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे एच स्क्वायर रख देंगे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाएगा इसमें 1 कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 बन जाएगा किसी भी एंगल के लिए, यानी ए एंगल कुछ भी हो, ये 12th रिलेशन बन जाएगा। ए की वैल्यू कुछ भी हो, स्क्वायर ऑफ साइन ए प्लस स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ऑलवेज 1 होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो कुल मिला के 12 हुए, 2 रिलेशन अभी और बचे हुए, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सारे रिलेशन इसी पी एच के ही हेल्प से बनते हैं, तो उनको भी देख लेता हूँ, इनको रब कर देता हूँ यहाँ पे। देयर आर 2 मोर रिलेशंस एंड दैट इज द, इसकी हेल्प से भी और रिलेशंस भी बनते हैं, जस्ट लाइक साइन स्क्वायर कास स्क्वायर आ गया। तो अगर इसमें 13 बनाना चाहें कि कास स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो सकती, एंड अगर साइन स्क्वायर ए निकालना चाहें तो ये 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो सकती है, ठीक है, एंड ये हो सकता है। फिर 15 रिलेशन अगर आ गया कि इसमें अगर हम ले लें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को अगर देखें तो ये 1 प्लस टेन होता है पी अपॉन बी इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हालांकि ये प्रूविंग तो नहीं आती है, बट अगर हमें कुछ थोड़ा सा पता है तो हम कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा मेरे दिमाग में, हम इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको एलसीएम लिया तो ये बन गया बी स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब अगेन देखिए इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, पूरा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी एच का हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए। तो कुल मिला के एक रिलेशन और हमारा बन गया, क्या रिलेशन है भाई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इसको टेन को अगर इधर ले आए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ऑलवेज 1 हो जाता। तो ये भी रिलेशन हमारा है 15वां रिलेशन। इसी टाइप से अगर टेन की जगह पे काट दिया हुआ है तो एक रिलेशन और बन सकता है। इन सारे रिलेशंस को एक बार हम समराइज भी कर लेंगे। ओवरऑल मुझे याद ही रखना पड़ेगा, तभी याद बनेगी बात। बेसिकली भी ध्यान रखेंगे तो फिर और अच्छा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक होता है, इसमें काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। नेक्स्ट है कि अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आ जाए 1 प्लस ये होता है भाई कितना होगा एच अपॉन बी अपॉन एच पी का स्क्वायर, दिस बिकम्स 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अगेन सॉल्व कराया तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, दिस इज एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एंड एच अपॉन पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स एच अपॉन पी इन द सेंस क्या बनेगा एच अपॉन पी, दैट इज कोसेक साइन का अपोजिट यानी कोसेक का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स कोसेक स्क्वायर ए एंड इट मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा बन गया कोसेक स्क्वायर ए। या इससे एक रिलेशन और भी बन सकता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इतने रिलेशन मुझे स्पेशली याद रखने हैं 9th के लिए, और यही फार्मूले एक्चुअली 10th में भी यूज होंगे। 10th में भी कोई बाहर से फार्मूले नहीं आने, इन्हीं फार्मूलों का यूज़ किया जाएगा, यानी यही चीज़ें 10th में यूज होंगी, यही चीज़ें 9th में भी यूज होंगी, एंड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा बहुत अंतर आ जाएगा, फार्मूले सेम है। आईसीएसई बोर्ड का थोड़ा सा ये फ़ायदा है, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम शुरुआत में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जस्ट लाइक 6 में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे पढ़े होंगे, जस्ट लाइक क्या नाम इंटरेस्ट निकालना देखा था 7 से स्टार्ट हो जाता है, वही चीज़ इंटरेस्ट क्लास 8 में पढ़ी, वही 9th में भी पढ़ रहे हैं, वही 10th में भी टॉपिक था, अब तो नहीं है, बचा है, हटा दिया गया। सो कई ऐसे टॉपिक हैं जो सब में मिलते हैं, थोड़ा उसमें हमें अंतर भी पता चल जाता है कि डिफरेंसेस क्या हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब तो नई सिस्टम आ रही पॉलिसीज़ की, नया सिलेबस, अब देखो कब से लागू करते हैं, तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो होगी ये तो कंप्लीट डिफरेंट है, तो पता नहीं आप लोगों को, हमें लगता है पढ़ने को नहीं मिलेगी, आगे तक के हो सकता मिल भी जाए। अभी तो पूरा देश कोरोना से ही निपट रहा है, तो अभी तो सिम लगे रहेंगे। सो इससे आगे बढ़ते हैं, इसको रब करके इनको थोड़ा समराइज करते हैं
कि क्या क्या हमने सीखा है इसमें। तो क्योंकि ज़्यादा बातें करने से फिर वीडियो बड़ा हो जाता है एंड जो चीज़ें हमें आनी चाहिए वो थोड़ी सी स्किप हो जाती, तो ज़्यादा बात नहीं करनी, बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम की बात करें वही ठीक होगा। कि अगर किसी ट्रायंगल में देखा जाए तो साइन ए बराबर हो गया पी अपॉन एच, कास ए बराबर होगा बी अपॉन एच, टेन ए बराबर होगा पी अपॉन बी, एंड ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर कॉट ए विल बी बी अपॉन पी, एंड फिर सेक ए विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कास, तो एच अपॉन बी, फिर कोशेक ए दैट इज एच अपॉन पी। ये 6 फार्मूले हैं जिनका सब खेल है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन यहाँ पे कास कोशेक का अपोजिट है, कास सेक का अपोजिट है, टैन काट का अपोजिट है। तो ये बात समझ लीजिए, इसमें ये एक तरह के अपोजिट हैं, उनको इधर को लगा लो और ये इधर चला जाएगा। These are the reciprocal of each other. This is the formula 1. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, this is 5, this is 6. There are 6 ratios in the side of a triangle. And triangle, I suppose this छोटा सा triangle बना लेते हैं. This is the angle A, B, C. This is P and this is B. ये P always opposite to the angle होगी. अगर angle C हो जाएगा तो P B के बराबर बन जाएगा। तो इसके बाद फिर है कि रिलेशंस, दैट इज इसका अपोजिट जो होता है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसको भी याद रखेंगे। ये सपोज के लिए 7th फार्मूला बन गया। 8th फार्मूला इसमें पढ़ा कि दैट इज साइन ए इंटू कोशेक ए जो होगा वो ऑलवेज 1 हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम ये भी लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 अपॉन कोशेक ए। तो इन दोनों फार्मूले एक ही वैरायटी के हैं तो उनको एक ही फार्मूला नंबर देते हैं। 9th हो गया कास ए इंटू सेक ए, ये बराबर है 1, तो यहाँ पे कास ए इज इक्वल टू हो सकता है 1 अपॉन सेक ए एंड वाइस वर्सा। एंड फिर 10th फार्मूला इसमें आ जाएगा कि tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, इट मीन्स tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए एंड वाइस वर्सा। तो ये रिलेशन एक ही टाइप के हो गए, इसी टाइप से ये एक ही टाइप के होंगे, एक ही से बनते हैं, ये भी एक टाइप होंगे, तो इनको अलग अलग बॉक्स में ही बंद कर दीजिए। इसके बाद फिर 10th में 11th हुआ कि दैट इज tan ए को अगर हम साइन कास बदलेंगे तो साइन ए अपॉन कास ए बन जाएगा। एंड फिर 12th कॉट में बदलेंगे तो कॉट ए इसका रेसिप्रोकल हो जाता है tan का, कास ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। एंड इसके बाद और रिलेशन पढ़े 13, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी से बनता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए, एंड कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन सकता है। ये इसका रिलेशन हो गया। सो 13 हो गए। एंड 14th पार्ट होगा इसका कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड इसको हम अगर चेंज करा लें तो दिस कैन बी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी टाइप से 14 ये हो गया। एंड नाउ 15 यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए रब कर देता हूँ, इतना हौच पौच करने की जरूरत है, इसको हटा देते हैं। इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, वीडियो में तो ये भी फायदा है कि 14th एंड 15th फार्मूला बन गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोशेक स्क्वायर ए। सो कोशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन बन जाएगा। कुल मिलाकर के 15 रिलेशंस हैं क्लास 9th और 10th दोनों लेवल पे मिलाकर के विद द रिलेटेड टू द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल
and this we will use for finding the different type of identities with different type of questions. ये चीज़ हम देखेंगे। क्लास 9th में स्पेशली क्वेश्चंस वो देखते हैं जिसमें कुछ साइड्स दी होती हैं, कुछ साइड्स हमें निकालनी होती हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं।